So good morning again. Today we are going to discuss a topic of operational amplifier, the very important topic, integrator. Integrator and differentiator is very important topic. So what is integrator? Uh, First of all, actually what is integrator? Integrator हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इंटीग्रेटर क्या होता है या इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम है यहाँ पर भी. That means the circuit in which output voltage waveform is the integral of the input voltage waveform. Okay, the circuit in which जहां हमें output जो है वो मिलेगा किसका, integral of the input waveform का मिलेगा. That means we can say V output is directly proportional to the integration of the V input. So this is the function of the integrator. And if we want to see the diagram, circuit diagram, then circuit configuration of the integrator is this. Here an important thing, the circuit is obtained by using a main, basically what connected in input is connected with negative terminal. Here input is connected with negative terminal, that means inverting configuration. Okay, if the RF is replaced by the capacitor, here RF is replaced by the capacitor CF. This is different, something different from other configuration in integrator. So यहाँ जो कैपेसिटर CF आपको दिख रहा है वही डिफरेंट है. ठीक है, तो ये सर्किट आपने पहले भी देखा है, ये एक ऐसा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है ओपैम्प का, जिसमें RF की जगह को रिप्लेस किया है हमने किससे, CF से. चलिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन समझते हैं. सो जो हमारे पास सर्किट है, उस सर्किट की अगर हम बात करें तो वहाँ सर्किट हम फिर से एक बार देखना चाहेंगे. ये सर्किट हमारे पास है, इस सर्किट में जो ये पॉइंट V है उसको यदि हम नोड लेते हैं और यहाँ पर अगर किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, KCL यूज करते हैं, देन हमारे पास क्या आएगा. थोड़ा सा पेन चेंज किया जाए, ये लो. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखिए हमारे पास आएगा कि जो करंट I1 है, आपको दिखाई दे रही होगी, करंट I1 है वो इक्वल होगा करंट IF प्लस करंट IB के. ये होगा इस तरह से, देखिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है I1 की वो वन डायरेक्शन है और इन दोनों की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है नोड V2 के लिए. तो उस कंडीशन में ये होगा, सिंस द करंट IB इज वेरी स्मॉल, that is, then we can write I1 is equal to what, IF. That means I1 is equal to what, IF. So now here is different thing is capacitor. So we know the definition of the capacitor, C is equal to what, Q upon V. C is equal to Q upon V. That means charge to increase the unit to potential of any circuit is called the capacitor of that circuit. That means Q is equal to what, C into V. So by Q we can easily determine the current. So taking d by dt both side, we have d by dt of Q is equal to d by dt. That means C is a constant, so d by dt into V. So now this dq by dt is called the current. That means we can write dq by dt is equal to what, current I, or through capacitor, that is why we represent it IC equal to C into dVc by dt, potential across capacitor. Is it clear? So here we know this equation, suppose this equation is one, I1 is equal to IF. So we substitute the I1 and substitute the value of IF. What is I1? I1, that means the difference, potential difference between V1, V in and V2. That means in this, from equation number 1, क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि V in minus V2
अपॉन रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे V1 और V2 के बीच R1, दैट मीन्स R1 okay equal to if you want to write in this form current IF, so we may write C in the place of CF, because feedback capacitor d by dt of voltage potential difference, that means d by dt of what is potential difference of this portion, that means V2 and V0. So we may write V2 minus V0 है ना। IF जो करंट है उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो यही है, V2 और V0 के बीच लगा हुआ है IF करंट जो है फ्लो हो रही है वो। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कि क्या, अब अगर हम कंडीशन ये लेते हैं कि इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट, then V1 is equal to V2 equal to 0, then this equation may be written in this form: V in by R1। ओके हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको, V in by R1 equal to CF कैपेसिटर था, D by dt V2 माइनस V0। तो V2 तो 0 हो चुका है, तो हम ले लेंगे इसमें V0, ये V0 clear। Now taking both side integration and integrate with respect to t, so V in R1 upon R1 dt equal to integration CF d by dt of minus V0 dt. So next one, we take here 1 by R1 is common, and taking this limit, actually here limit is with respect to t, that means limit is initial to final state, that means 0 to t time, 0 to t time. So 1 by R1, taking common 1 by R1, V in 0 to t integration V in, that means V input dt equal to CF d by dt and dt cancel, equal to CF minus V0, ये इंटीग्रेशन आपको क्लियर हुआ होगा, प्लस एनी कांस्टेंट C। Then what, then taking we have to require the V output, so V output अगर यहाँ से हम निकालना चाहते हैं, constant C is equal to suppose 0, then we get the V output is equal to माइनस ट्रांसफर हमने किया 1 by R1 और उसके साथ ट्रांसफर कर दिया किसको, CF को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और इंटीग्रेशन ले लिया 0 to t, करेक्ट है, V in dt, ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, कांस्टेंट ट्रांसफर अगर हम करते हैं, लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। So it is clear then V output is directly proportional to the integration of minus of integration of V input, जो हमारा स्टेटमेंट था, है ना, the circuit in which the output waveform is the integral of the input waveform, ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि जो V आउटपुट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है RC के, RC दैट मीन्स दिस RC इज कॉल्ड, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो RC है, तो टाइम कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो आउटपुट होता है इन एनी इंटीग्रेटर। सिंस जो आंसर हमारा आएगा इसमें चूंकि इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो निगेटिव आएगा, इसलिए ये निगेटिवली आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास जो क्या कहना चाहिए, इनपुट है वो अगर साइन वेव में है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास अगर इनपुट जो है वो कुछ इस तरह का इनपुट है,
इंटीग्रेटर में हमने जो दिया है, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, हमारा आउटपुट जो आएगा वो कोसाइन में आएगा, है ना। और कोसाइन आपको मालूम है यहाँ शुरू होता है, तो आउटपुट जो हमारा आएगा वो कैसा आएगा, कोसाइन में आएगा। सपोज कि हमारा इनपुट जो है वो सॉरी ये मैंने मिस्टेक किया, ऐसा नहीं होगा, ये कैसा होगा, कोसाइन आपका यहाँ से शुरू होगा, मतलब ये ऐसा है। अगर हमने इनपुट जो लिया है वो स्क्वायर लिया है, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर वेव लिया है, तो जो आउटपुट आएगा वो आपका कैसा आएगा, ट्रायंगल वेव आएगा, कुछ ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कंडीशन और होती है कि अगर हम वी इन को जीरो कर देते हैं, अगर हम वी इनपुट जो होता है हमारा, वी इनपुट जो है उसे जीरो कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटर को हम कहते हैं कि वो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह क्या करता है, काम करता है। सिंपल सी बात है भाई, वी आउटपुट जीरो हो चुका है, हेंस कैपेसिटर सी एफ एक्ट एज ओपन सर्किट, तभी तो ये पॉसिबल होगा कि सी एफ अगर ओपन सर्किट होगा तभी वो ओपन लूप हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में जो एरर आता है हमारा ड्यू टू कैपेसिटर, क्या आता है, कैपेसिटर जो होता है वो एक एरर प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं वोल्टेज एरर। तो वो एरर जो आउटपुट में हमको मिलता है ड्यू टू कैपेसिटर, उसे रिड्यूस अगर हमें करना है तो हम जनरली यूज करते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में हम कैपेसिटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस, जिससे फीडबैक रेजिस्टेंस हम लेते थे वो रेजिस्टेंस हम लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में ये सर्किट देखिए। इस सर्किट में आपको क्लियर होगा कि सीएफ जो हमारा था, है ना, उस सीएफ के साथ हमने पैरेलल में यहाँ एक आरएफ लिया है। ये चेंजेस है प्रैक्टिकल ओपेम में। आरएफ लिमिट द लो फ्रीक्वेंसी गेन, दैट मीन्स जो आपका एरर आ रहा था उसे वो क्या करेगा, कम करेगा, हेंस मिनिमाइज द वेरिएशन इन द आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा था या जो एरर आ रहा था उसको वो कम करेगा, कौन, आरएफ करेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस है, इसे आप देख सकते हैं। नाउ वी विल सी द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ इंटीग्रेटर। ओके, ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ इंटीग्रेटर का जो डायग्राम आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे बिटवीन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें एफ बी को देखिए, है ना। एफ बी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन इज 0 dB। हमारे पास जो एफ बी पॉइंट दिख रहा है ना, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 dB होती है, dBs यूनिट, है ना। और एफ बी का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने इसको पढ़ा है, एफ बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई आर सी, दैट मीन्स यहाँ होगा R1C F, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम बेसिक इंटीग्रेटर की बात करें तो बेसिक इंटीग्रेटर का डायग्राम रिस्पॉन्स देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम आइडियल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में देखिए आइडियल के लिए पूरा स्क्वायर बना हुआ है, शार्प, ये नुकीला वाला जो हिस्सा है वो आइडियल के लिए है, और जो ये वेरिएशन वाला हिस्सा है वो आपका प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। ये वाला आप देख रहे होंगे, है ना, ये प्रैक्टिकल एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ द प्रैक्टिकल ओप एम्प, क्लियर है। सो फॉर स्टेबिलिटी एंड द 1000 फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं और इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, चलिए एक बार इसको देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में हम सिर्फ ये सब चीजें ही बता सकते हैं कि बेसिक इंटीग्रेटर के लिए फ्रीक्वेंसी कैसी है, आइडियल रिस्पांस के लिए एक एग्जांपल भी आप गायकवाड की बुक में आप देख सकते हैं। विथ एक एग्जांपल बताया है कि गेन लिमिट फ्रीक्वेंसी एफ ए जो होती है, उसमें क्या होना चाहिए कि एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं, एफ ए की वैल्यू लेस होनी चाहिए एफ बी की वैल्यू से, है ना। ये एक केसेस दिया हुआ है इसके लिए, तो ये विद एग्जांपल आप बुक में इसको देख सकते हैं। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस केवल आपको बताना है तो इस डायग्राम को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है, वो भी अगर पूछा जाए तो कि इंटीग्रेटर में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को आप समझे। अदरवाइज इंटीग्रेटर का जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट जो हमने
यहाँ तक देखा था, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर तक, वहीं तक है। ठीक है, एक और टॉपिक इसके बाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर आप कोशिश करेंगे खुद से एक बार देखने की, लगभग सेम है वो भी, जैसा ये इंटीग्रेटर है ठीक इसी प्रकार का डिफरेंशिएटर है। मतलब जो आउटपुट होगा वो वेव फॉर्म होगा, वो डिफरेंशिएशन होगा किसका, इनपुट वेव फॉर्म का। ठीक है, तो एक बार उसे देखेंगे, और आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, अगला हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।